Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 9th. Okay, so as you know, we are discussing about digital documentation of your vocational skill chapter. Okay student, so this chapter comes in your syllabus part B. Okay, in part A we already discussed about employability skill in our earlier videos. So here this video I am going to show you the different type of views in MS Word, okay, which I discussed in my previous chapter also. So here this is my MS Word. Okay, so MS Word, here in the right side, in the status bar, the right side, you can see this icon, print layout, okay, full screen layout and web layout. So these are the layout. Similarly, these tools you can get in the view tab also, right? Print layout, okay, full screen layout and web layout. In your syllabus beta, you have only three layout: print layout, full screen layout and web layout. Print layout also called a normal view. Okay, beta. As your book says, a normal view is a default view in a writer. This is a writer. Okay, normal view is a default view of a writer or in a writer. ठीक है, ये आपका राइटर है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट जहां पे हम टाइप कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये आपका राइटर जहां पे हम लिख रहे हैं. ठीक है, चलिए हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं. यहाँ से भी हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट हियर. Simple. So we are talking about different kind of views. Okay, so suppose i'm going to write something here with the help of our formula. What was our formula is equal to rand random and 10 comma 10. So this is my formula through which we can get predefined text here. When enter it, you will get different type of text. Okay, now how many page here in this document? So here you can see the number of pages 7. Now you are in page number 1. Okay beta, so now you are in page number 1. So this view is a default view of the writer. Okay, this view also called a print layout view also. You can see here, right, print layout view or you can say normal view. ठीक है, इस व्यू में क्या होता है? So it shows how a document will look when you print it or create a PDF. Means ये भी आपको बताता है कि ये कैसा दिखेगा जब आप उसको प्रिंट करेंगे. ठीक है, जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो कैसा प्रिंट आउट आपके पास आएगा, ये व्यू बताता है. ठीक है, और when you create this document as a PDF also. Okay, so in this view you can use the zoom slider and the view layout icon ऑन द स्टेटस बार. सी यहाँ बहुत सारे स्लाइडर यूज कर सकते हैं इस व्यू के अंदर. जूम स्लाइडर है, यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, और आपकी जो स्टेटस बार भी हमारे व्यूज जो दिया गया है. ठीक है, स्टेटस बार पे जो हमारा ये स्लाइडर है, जूम स्लाइडर, इस व्यू के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं. तो फिलहाल आपको ये समझना है कि इस व्यू में आपको जब आप प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट तो कैसा दिखेगा, इस व्यू में आपको मालूम पड़ता है. इवन जब आप इसका पीडीएफ क्रिएट करेंगे तो पीडीएफ कैसा दिखेगा वो इस व्यू में आपको मालूम पड़ता है बेटा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इस व्यू को अगर हम इसको दूसरे व्यू में लेके जाते हैं तो दूसरा व्यू हमारा क्या है, सेकंड व्यू इज माय वेब लेआउट. ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए हम कहाँ पे जाएंगे, व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हमारा क्या है, वेब लेआउट है. ठीक है, तो वेब लेआउट का मतलब, वेब का मतलब क्या, इंटरनेट लेआउट. ठीक है, वेब का मतलब इंटरनेट. जैसा कि आपको डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे दिखता है, वेब पेज पे दिखता है इन अ फॉर्म ऑफ HTML. ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, वेब व्यू शोज हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ व्यूड इन अ वेब ब्राउजर. जैसे कि आप वेब ब्राउजर पे आप इसको देख रहे हैं, ऐसा दिखेगा जैसे कि वेब ब्राउजर पे आप देख रहे हैं. जैसे कोई आप HTML फाइल जब आप रन करते हैं वो जैसा दिखता है, पूरा एक विंडो का स्क्रीन ले लेता है. ठीक उसी तरह से ये आपको व्यू प्रोवाइड करेगा. ठीक है, दिस व्यू यूजफुल व्हेन यू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट. जब आप कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये आपका व्यू
हेल्प करता है, ठीक है ना। इस व्यू यू कैन यूज ओनली द जूम स्लाइडर, यहाँ पे जूम स्लाइडर आप इसको इस व्यू के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना वेब लेआउट। जैसे देखो अभी आपको व्यू कैसे दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक है, प्रिंट लेआउट फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा वेब पेज की तरह दिख रहा है। देखो ऊपर का जो टॉप जो रिबन जहां पर वो गया नहीं है, यहाँ से अभी भी यहाँ पर है रिबन, अभी यहाँ पर भी है, टैब्स अभी यहाँ पर हैं, प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो नीचे का जो लेआउट है वो चेंज हो गया है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ, ये देखिए यहाँ नंबर ऑफ पेज चले गए हैं, पेजेस यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक वेब पेज के अंदर आ गया है, ठीक है। देखो एक वेब पेज की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके पहले आपने क्या देखा था प्रिंट लेआउट में, जहां पर आपके पास 7 पेज आ गए थे, एक डॉक्यूमेंट के अंदर 7 पेज आ गए थे, ये पूरा वेब पेज। अब आप इसमें कितना भी डॉक्यूमेंट, कितना भी आप इसमें टेक्स्ट एंटर करेंगे, ये एक ही वेब पेज की तरह वर्क करेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो लेआउट है उसको कहते हैं वेब लेआउट, ठीक है। और ये कैसा दिखता है, जिस तरह से वेब ब्राउजर पे आप कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं वो ऐसा दिखता है बेटा। अब नेक्स्ट जो आपका लेआउट है उसको बोलते हैं आपका फुल स्क्रीन लेआउट। अब वो फुल स्क्रीन लेआउट आपके देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फुल स्क्रीन लेआउट है। ये क्या करता है, इन दिस व्यू नो टूल बार और स्लाइड बार आर डिस्प्ले। देखिए यहाँ पे जूम सेक्शन आपको दिख रहा है, वेब लेआउट में आपको जूम सेक्शन दिखता है, इवन प्रिंट लेआउट में भी आपको जूम सेक्शन दिखता है, ठीक है। लेकिन आपको फुल स्क्रीन में रीडिंग में आपको जूम सेक्शन नहीं दिखता है। The document takes up the full area available, जितना भी एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है इस स्क्रीन का पूरा, जो जितना भी स्क्रीन, जितना बड़ा स्क्रीन है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ये कवर कर लेता है, यूजिंग दिस जूम एंड लेआउट सेटिंग प्रीवियसली सेलेक्टेड, जो कि पहले सेलेक्ट की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको एग्जिट करने के लिए आपको एग्जिट बटन मिलता है, जहां से आप इसको इस व्यू को एग्जिट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं इसका प्रोग्राम, इसका प्रैक्टिकल। यहाँ पे क्लिक करते हैं फुल स्क्रीन लेआउट पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्यू द डॉक्यूमेंट इन द फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्पेस अवेलेबल रीडिंग और कमेंटिंग ऑन द डॉक्यूमेंट। मींस क्या होता है, जितना भी आपका स्क्रीन है उस पूरा स्क्रीन कवर कर लेता है ये व्यू। तो चलते हैं हम अपने रीडिंग व्यू पर या फुल स्क्रीन रीडिंग पर क्लिक करते हैं। ये देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर रीडिंग व्यू आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे हमारे पास पेज थे, तो पेज को क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया, अलग अलग पेज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 to 11 पेज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से पहले पेज हमारा ये दिख रहा है, उसके बाद ऐसे आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। ये रीडिंग व्यू है और उसको हम लोग फुल स्क्रीन व्यू बोलते हैं। आपको यहाँ पे राइट साइड में देखिए यहाँ पे क्लोज ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे व्यू ऑप्शन भी दिख रहे हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी व्यू यार, वन शो 1 पेज और शो 2 पेजेस। यहाँ पे शो 1 पेज करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पेज करेंगे तो आपको 2 पेज में दिखेगा, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिख जाते हैं, यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं आपके सारे, ठीक है। और यहाँ से आपको हाईलाइट करने के लिए है, प्रिंट लेआउट है, सेव करने के लिए है, मेनी ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये आपका रीडिंग व्यू होता है, जैसे कि आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप बुक की तरह इसको एज अ पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करिए, यहाँ पे दूसरा पेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज करने के लिए आपके पास क्लोज बटन है, जहां से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद ये नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो कहाँ पे हमारे पास है प्रिंट लेआउट, जिसको हम नॉर्मल व्यू बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू या फुल स्क्रीन व्यू, और तीसरा हमारा है वेब लेआउट, ठीक है। तो ये तीनों हमने अभी डिस्कस किया बेटा। तो ये हमने इसमें देखा। अब जो हम नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं वो हमारा है कट कॉपी पेस्ट, जो कि हमने पहले देखा था, ठीक है। एक बार वापस से हम इसे कट कॉपी पेस्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज देखेंगे वो है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक जो होती है वो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, और दूसरा है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, होम पे मिलेंगे, ठीक है। होम पे जाएंगे आप, तो अभी क्या करते हैं हम सिंपल, अब यहाँ से हम एक पेज रखने के बाद बाकी सारे जो पेजेस हमारे हैं उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सारे सेलेक्ट किए, सारी चीजों को, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और क्या किया, बैक स्पेस से क्या करेंगे, सारे को रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ खाली अभी एक डॉक्यूमेंट हमारे पास बचेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन हमारे पास अभी सिर्फ खाली एक ही डॉक्यूमेंट है। तो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ खाली हमारे पास कितने पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ है बेटा, एक पैराग्राफ है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, अलाइनमेंट सेट किया था, सेलेक्ट ऑल करते हैं, सेलेक्ट ए
कंट्रोल प्लस ए से हमने क्या किया, सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस ए है इसका शॉर्टकट की है, और यहाँ से हमने क्या जस्टिफाई ले लिया। जस्टिफाई से क्या होता है, हमने बताया था कि जो भी स्पेस होता है वो कवर हो जाता है एक लाइन के अंदर। अब हमारे पास क्या है, एक एक पेज है ये, और एक पेज के अंदर हमारे पास एक दो पैराग्राफ है। अब दो पैराग्राफ के अंदर अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है बेटा, सपोज आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। अब उस पेजेस में सपोज आपको किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना है, ठीक है, तो आप कैसे ढूंढेंगे उसको। सपोज हमने मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक कोई स्पेसिफिक वर्ड है हमारा THE द, या फिर R, या फिर आइटम्स, ठीक है, किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमको ढूंढना है। तो चलिए हम ढूंढने जा रहे हैं क्या, डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट। हमारे इस पेज में हमारे डॉक्यूमेंट कितनी बार लिखा गया, ये कहाँ कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसको, हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में फाइंड दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस F, इसका शॉर्टकट की है, तो हम कंट्रोल प्लस F भी प्रेस करते हैं और यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास फाइंड ऑप्शन आ गया, फाइंड का। ठीक है, हमको कौन सा वर्ड ढूंढना है, डॉक्यूमेंट। हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट लिख दिया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट लिखने के बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स लिखा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, रीडिंग हाईलाइट या फिर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की है वो हमारा F3 होता है। चलिए, तो हमारा कर्सर हमारा अप पे होना चाहिए, पहले कर्सर हमारा कहाँ होना चाहिए, हमेशा ऊपर अप लाइन पर होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा है, देखिए फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए डॉक्यूमेंट आपको पहले कहाँ मिला, यहाँ पर मिल गया। फिर फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए मिला डॉक्यूमेंट। फिर तो इस तरह से आप देखेंगे आपको बहुत सारे, तो टोटल हमारे ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल गया आपको। ठीक है, राइट साइड पे करते हैं ताकि समझ में आवे हमको। यहाँ पे अब देखिए फाइंड नेक्स्ट किया तो हर जगह जहां जहां पे डॉक्यूमेंट हमको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं फाइंड। अब बेटा अगर इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको रिप्लेस करना है किसी टेक्स्ट से, ठीक है, तो फाइंड इसके लिए हम क्या जाएंगे, रिप्लेस पे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट को और क्या बोल सकते हैं अपनों, है ना। ठीक है, डॉक्यूमेंट का और क्या सिनोनिम्स हो सकता है, तो उसके लिए हम कहाँ थ्रेशर्स पे जाएंगे। थ्रेशर्स हमको कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो देखते हैं, हमको यहाँ पर थ्रेशर्स जाना है, व्यू, देखते हैं थ्रेजर्स कहाँ पे, हमारा रिव्यू पे है, ये देखिए हमारा थ्रेजर्स है। रिव्यू टैब पर आपको थ्रेजर, आपको किसी स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करना है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है, जो सिनोनिम से रिप्लेस करना है। चलिए हम देखते हैं कैसे रिप्लेस करते हैं। तो फिलहाल अभी हमने क्या किया, हमको डॉक्यूमेंट का देखना है, डॉक्यूमेंट को और क्या क्या बोलते हैं। जहाँ पे देखिए टेक्स्ट, फाइल, ठीक है, आर्टाइड, ठीक है, ये बहुत सारे पेपर हो गए। तो चलिए हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को फाइल से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फाइल से रिप्लेस करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो हम जाते हैं अपने होम टैब पर, होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन है, रिप्लेस पे क्लिक किए। अब देखिए डॉक्यूमेंट पहले से लिख कर आ रहा है, ठीक है, नहीं भी लिख के आएगा तो आपको यहाँ पे कुछ लिख देना, कुछ भी। सपोज आपने लिखा डॉक्यूमेंट और आपने लिखा यहाँ पे रिप्लेस विद, इसके साथ इसको आपको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस के लिए आपने लिखा फाइल, FILE। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जहां जहां पे डॉक्यूमेंट होगा हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसे। तो अब यहाँ पर अपना होम कर्सर यहाँ पे आप रखेंगे एंड उसके बाद क्या, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल कर देंगे। जहां जहां पर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वर्ड हैज कंप्लीट, वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट हैज मेड 11 रिप्लेसमेंट। इसका मतलब कि 11 जगह पे जहां पे डॉक्यूमेंट लिखा था वहां पे क्या हो गया है, फाइल आ गया है। ठीक है, ओके। अब चलिए अब डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं। तो डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, अब वो क्या कर रहा है, नॉट फाउंड, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, क्योंकि इट इज रिप्लेस्ड। ओके, अब इसके जगह हम फाइल करते हैं, ठीक है, फाइल करेंगे एंड फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए आपको फाइल मिल रहा है। जहां जहां पे डॉक्यूमेंट था वहां पे क्या हो गया है, ठीक है, फाइल आ गया है। इसके पहले आपने कहीं पे जहां जहां पे डॉक्यूमेंट सर्च किया था, अब वापस से इस फाइल को रिप्लेस करना है डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये देखिए फाइल लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिप्लेस विद डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे लिखा है रिप्लेस ऑल, जगह यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब इसके बाद फाइल को आप फाइंड करेंगे तो फाइल क्या कहेगा, नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, अब हम इसको फाइंड करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। ठीक,
ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, आपको हर जगह डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने फाइंड और रिप्लेस कैसे अप्लाई किया। अब इसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास है गो टू का। गो टू क्या करता है, गो टू का शॉर्टकट की है। चलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सब का शॉर्टकट की हम देखते हैं। तो फाइंड का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ, यानी कंट्रोल के साथ आपको क्या प्रेस करना है, एफ प्रेस करना है। रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, और जो गो टू के जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी। अब देखिए यहाँ पर देखिए टैब्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, इस टैब के थ्रू हम देखेंगे, समझते हैं। क्लोज करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ। तो देखो यहाँ पर टैब हमारा फाइंड इनेबल है, ठीक है, रिप्लेस नहीं है, रिप्लेस एंड गो टू हमारा क्या है, ओपन नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच करते हैं, तो देखो यहाँ पर रिप्लेस टैब ओपन है, ठीक है। सिमिलरली अगर कंट्रोल प्लस जी करेंगे, कंट्रोल प्लस जी ऐसे करेंगे, तो देखो ऑप्शन हमारा गो टू का हमारा आ गया। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना है, सेक्शन पे जाना है, लाइन पे जाना है, बुकमार्क पे जाना है, कमेंट पे, फुटनोट पे, कहीं पर भी जाना है, क्योंकि हमारे पास एक ही पेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक दो पेज और बना लेते हैं। सपोज क्लोज करते हैं इसको, हमने क्या किया, सभी को कॉपी किया टेक्स्ट को अपने, और क्या करते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और फिर इंसर्ट से एक नया डॉक्यूमेंट यानी कि एक नया ब्लैंक पेज ले लेते हैं। नया ब्लैंक पेज लिया और हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस वी किया। तो आप अभी देखो हमको क्या मिल गया, टैब। सो अभी हमें यहाँ पर एक नया पेज हमें मिल गया, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने पेजेस हो गए, 3 पेज। तो 3 पेज चाहिए हमको, 2 पेज चाहिए। तो 2 पेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अपने पहले वाले टेक्स्ट को पहले वाले में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया हमारा दूसरा पेज, ठीक है, ये हमारा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है। अब तीसरा पेज कहाँ है, नहीं, चला गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 पेज हैं। अब आप पहले पेज पर हैं, सपोज यहाँ पर पहले पेज पर हैं, कंट्रोल प्लस जी किया आपने, क्या आ गया, गो टू। गो टू में कहाँ जाना है, पेज नंबर 2 पे जाना है, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करिए एंड देन गो टू। तो आप पेज डायरेक्टली कहाँ पे जंप कर गए, पेज नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख भी रहा है, ठीक। उसी तरह से आपको पहले पेज पे जाना है, पेज पर यहाँ पे 1 पे क्लिक करिए एंड गो टू पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए आप इस समय पहले पेज पर हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या सीखा, फाइंड कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे होता है, और गो टू कैसे मूव करता है, ठीक है। तो ये हमने किसमें देखा, अपने होम टैब पर। होम टैब पे आपको क्या, फाइंड, रिप्लेस एंड क्या है, गो टू है, ठीक है। तो जंपिंग, इस टॉपिक का नाम क्या है, जंपिंग टू स्पेसिफिक पेज नंबर और इन राइटर। किसी भी स्पेसिफिक पेज पर जंप करने को क्या बोलते हैं, गो टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। चलिए जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, फॉर्मेटिंग, जब टी में देखो यहाँ पर वर्ड में सपोज हमने टाइप किया, फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, FORM फॉर्मेटिंग, FORMATTING, फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने गलती से क्या किया, डबल टी की जगह एक सिंगल टी लगा दिया, TING लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम गए आगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है हमारे पास, क्या देखते हैं क्या ऑप्शन है ये, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, ऑटो करेक्ट, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर चेक चेंज, ठीक है, इसको हम चेंज करना, ऑटोमेटिक करेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल ऑटो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे तो ऑप्शन नीचे हमारा रेड लाइन दिया नहीं, देखिए ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया ये, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक वर्ड टाइप किया, सपोज चलते हैं नीचे अपने डॉक्यूमेंट में, इसको हटा देते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज माई न्यू डॉक्यूमेंट। अब ओ यू की जगह हमने डॉक्यूमेंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट अनेबल है, तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं वापस से कोई स्पेसिफिक वर्ड टाइप करते हैं, सपोज दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली इज आवर कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब कैपिटल की स्पेलिंग जो है
हम क्या करते हैं KAPE, ठीक है। अगर ऑटो करेक्ट लगता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया KAPETAL। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है स्पेलिंग रॉन्ग। अब स्पेलिंग रॉन्ग है तो यहाँ पे कैसे जाना है, F7 से आप स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए क्या अपने पास ऑप्शन आ रहा है, क्या क्या आपको ये ऑप्शन चाहिए, आपने कहा यस, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं सही, अगर यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन क्या आपको मिलेगा स्पेलिंग का, यहाँ पे जाते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए क्या कह के आ रहा है, न्यू दिल्ली इज अवर कैपिटल, ठीक है। और यू कैन से न्यू दिल्ली इज अवर, या फिर इंडिया कैपिटल, ठीक है, इंडिया कैपिटल या कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल, अभी तो फिलहाल हम सीख रहे हैं क्या है, ठीक है। कैपिटल में आई होना चाहिए, यहाँ पे इग्नोर वंस है, इग्नोर ऑल है, इग्नोर वंस का मतलब इसको इग्नोर कर दो और जैसा लिखा है ऐसा लिखा रहने दो, ठीक है। इग्नोर वंस में, इग्नोर ऑल के मतलब जहां जहां पर भी ये कैपिटल इसी तरह से लिखा है सब जगह इग्नोर कर दो। और या तो ऐड टू डिक्शनरी, ऐड टू डिक्शनरी मतलब अगर इसको आपने ऐड कर लिया और नेक्स्ट टाइम अगर आपने सेम स्पेलिंग लिखी तो उस बार क्या होगा, एरर नहीं होगा, वो डिक्शनरी में आपके ऐड हो गया है। चेंज करना है तो चेंज करने के लिए ऑप्शन आपको देगा चेंज, देखो कैपिटल आपका चेंज हो गया, क्योंकि ऑप्शन वहां पे कैपिटल का नीचे दिखा रहा था तो उससे हमारा क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इसको हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, इसका शॉर्टकट क्या है F7। तो आप कीबोर्ड पे जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपको F7 पे क्या मिलेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का ऑप्शन मिलेगा। देखिए कैसे करें, फिर हम जाते हैं KAPETAL, ठीक है, यहाँ पे F7 पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट की ये वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं, चलिए देखते हैं स्पेलिंग ग्रामर पे इसका जो स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक का जो हमारे पास ये होता है, ये गए हम, ठीक है, ये शॉर्टकट की क्या है हमारा F7 ही होता है, इसका F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। और यहाँ पर राइट क्लिक करके कहाँ पे जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्पेलिंग वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो आप स्पेलिंग पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए कैपिटल लिखना है आपको, तो यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कैपिटल, ठीक है, उसके बाद अनडू और एडिट, ठीक है, चेंज, तो कैपिटल आप कर लेते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है या ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल पे जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेटा ये था आप लोग का चैप्टर में सेशन 2 का चैप्टर, ठीक है। इसके पहले हमने सेशन 1 पढ़ा था और ये हमारा क्या है सेशन 2, जिसमें हमने कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन भी देखा है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन देखा, और स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक अगर होती है तो उसको कैसे आप सही करेंगे वो हमने देखा। तो फिलहाल दो चीज समझने वाली चीज है इसमें, स्पेलिंग और मिस्टेक में क्या, सपोज हमने यहाँ लिखा दीज आर ARE दीज आर माई न्यू बुक्स, दीज आर माई न्यू बुक, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर स्पेलिंग सही है, ग्रामर भी सही है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, दीज आर की जगह दीज इज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है, ग्रीन जो लाइन आपकी आ रही है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, वापस से जाएंगे कहां पर, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में, यहाँ देखो ऑप्शन दिखा रहा है, या तो उसको आप दिस इज लिखिए या तो आप उसको दीज आर लिखिए। आप इग्नोर करेंगे तो जो मिस्टेक है चली जाएगी, लेकिन अगर ग्रामर पे जाना चाहते हैं, देखिए इस बार यहाँ पे स्पेलिंग नहीं ग्रामर दिखा रहा है, इस पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिखा रहा है, दिस दीज इज, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो आपको सजेशन में क्या दिख रहा है, या तो आप दीज आर लिखें या तो दिस इज लिखें, तो आपको जो भी लिखना है यहाँ से आप उठा सकते हैं। अगर दिस इज लिखना है चेंज करें, दिस इज माई न्यू बुक हो जाएगा, या फिर दीज आर माई न्यू बुक हो जाएगा, तो हमने दिस इज माई बुक चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे हैं, ठीक है, F7 हमारा शॉर्टकट की है और वहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। अब आता है सिनोनिम्स,
ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि जहां से हमारे पास एक ऑप्शन है थ्रीजर्स का, ठीक है, या थिरासस का। अब ये ऑप्शन कहां पे दिखता है हमें? थिसॉरस ऑप्शन कहाँ है? थिसॉरस यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा? रिव्यू पे जाएंगे और ये ऑप्शन देखिए, ठीक है, थिसॉरस। ये आपका थिसॉरस जो आपका है, ये ऑप्शन आपको हेल्प करता है कि आप किसी स्पेसिफिक वर्ड का सिनोनिम्स लिख सकें। सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, एडजेक्टिव सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का भी ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे देखो शॉर्टकट क्या दे रहा है? F7 दे रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखिए थिसॉरस क्या है, कैसे आपको हेल्प करता है, देखिए। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा कोई स्पेसिफिक पेज है, स्पेसिफिक पेज में हमको कोई ऑप्शन या कोई वर्ड स्पेसिफिक को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे गए टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह में कुछ और लिखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कहाँ पे, शिफ्ट प्लस F7 प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको देखो टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या चाहिए आपको? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बुक है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ठीक है, नाउन इसके बुक्स है, ठीक है, ट्रांसलेट, कॉपी, टेक्स्ट बुक, पैसेज, ठीक है, वर्डिंग, मेनी थिंग्स। और सपोज अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड है, मान लीजिए आपने इसको डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, तो डॉक्यूमेंट का देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये आपके सिनोनिम्स दिख रहे हैं, यानी कि वर्ब, टेक्स्ट के नाउन, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्या रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड वर्ब दिख सकता है, ठीक है, डिटेल्स दिख सकता है। यहाँ पे इसके एंटीनोम्स भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एंटीनोम्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपके किसमें आते हैं? थिसॉरस में आते हैं, थिसॉरस में, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की क्या? शिफ्ट प्लस F7 है। यहाँ पे किसी को रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करेंगे? तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया इसको, ठीक, टेक्स्ट को, और टेक्स्ट की जगह हमने क्या लिख दिया? हमने क्या लिखा? टेक्स्ट की जगह हमने इसको रखा, सपोज वापस चलते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसको चेंज करना है किससे? ये पैसेज से चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट, ठीक है। तो जहां पर टेक्स्ट की जगह क्या आ गया? पैसेज आ गया। इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बाय चूजिंग, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया तो वो हमारे पास आ गया, ठीक है। इंसर्ट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास है। तो आपने देखा क्या, थिसॉरस से आपने क्या देखा कि एक नया वर्ड आपको एक स्पेसिफिक वर्ड का मिल सकता है। क्या? यू कैन एक्सेस अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? सिनोनिम्स मिल सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्ड का, ठीक है। तो ये बेटा हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या देखा? फाइंड एंड रिप्लेस। तीसरा क्या देखा? स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक ऑप्शन कहाँ में मिलेगा, और फिर हमारा आता है थिसॉरस, ठीक है। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था ये कवर होता है, जो कि सेशन 2 में है। ओके, सो फॉर योर होमवर्क असाइनमेंट आपको पेज नंबर 101 पर मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर 101 पर आपको होमवर्क मिलेगा, और इस पेज नंबर 1 पे आपको क्या करना है? एमसीक्यूज क्वेश्चन करना। मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, फॉर होमवर्क हमने यहां पे लिख दिया। होमवर्क के लिए, ठीक है, आपको मिलेगा कहां पर? इन पेज नंबर, 2 पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं जिसमें से आपको इसका असाइनमेंट करना है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट जो आपको मिलेगा पेज नंबर 95 पर, पेज नंबर 95 और पेज नंबर 101। ये पेज नंबर 95 और पेज नंबर 101 पर आपको जो है इसके सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट जो है वो आपको कंप्लीट करना है होमवर्क के लिए। पेज नंबर 95 और 101 पेज का सेल्फ असेसमेंट आपको कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन MS ऑफिस। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग इट।